शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। तेलंगाना में इंटरमीडिएट रिजल्ट पर बवाल जारी है। नामपल्ली में वाक़े बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पर आज तलबा, औलियाए तलबा और तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया है और रिजल्ट में धांधलियों का इल्जाम लगाया। साथ ही कहा कि बोर्ड ओहदेदारों ने रिजल्ट के मामले में गफलत बरती। उनका मुतालबा है कि वज़ीर तालीम जी जगदीश रेड्डी को फौरन मुअत्तल किया जाए और बोर्ड सेक्रेटरी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। उधर तलबा और उनके सरपरस्तों ने इम्तिहानात के पर्चों की दोबारा जांच की भी मांग की है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर पर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त कर दिए हैं। बोला ऐसा आप पास कर दिए, 35 मार्क्स डाल दिए सिविक इकोनॉमिक्स में, फुल लिखे बाद भी 10 में 9.2 है। अब ऐसा कैसा आता? 3 मेहनत करे अरे रिकरेक्शन भी नहीं है। अब क्या करना आप समझ नहीं आ रहा। पूछो लोग 600 ने 1000 डालेंगे, अगर पास करके दे रहे ना, फिर अगर पेपर दिखा रहे क्या पूछो। లేదు మా పేపర్ మాకు ఇవ్వండి, మా బాబు రాసింది ఏదో మేము చూసుకొని గమ్మునుంటాం. అలా కాకుండా అసలు పేపరే లేదు, తాళాలు వేసేసుకొని ఇంతమంది తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నా అసలు దేశం కొట్టిపోయినట్టు ఎవరు పట్టించుకోకుండా పోలీసు వారైతే వచ్చిన వాళ్ళని సపోర్ట్ వచ్చిన వాళ్ళని తీసుకెళ్లి పడేస్తున్నారు పక్కన. మరి ఎవరు వస్తారు ఈ తల్లిదండ్రులకి? ఈ బిడ్డల జీవితం ఏమైపోవాలా? ఆగమైపోద్దా? అంటే 1 ఇయర్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. తర్వాత సప్లిమెంటరీ రాసుకోవాలి. వీళ్ళ లైఫ్లో మరి స్కోర్ ఉండదు కదా. మేమేమి ర్యాంకులు రావాలని సాధించాలని మేమేం చదివిట్లా, కనీసం వాళ్ళకి ధర్మం చదువుకోవాలి కదా. అటు చదువును కూడా వీళ్ళు వృధా చేస్తే ఈ మార్కులు పేపర్ లేకుండా మార్కులు ఎలా వేస్తారు? మీ దగ్గర మిస్ అయినప్పుడు ప్రభుత్వానికి చెప్పండి మా దగ్గర మిస్ అయినాయి అని. అప్పుడు మీ చేతగానితనాన్ని చూసి మేము ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నామని ఏడుస్తాం. ఇంత దిక్కులేని రాష్ట్రంలో ఉన్నట్టుంది. ఒక మంత్రి లేడా, ఒక ముఖ్యమంత్రి లేడా, ఆదరణ లేకుండా వాళ్ళు వెళ్ళే ఉన్నాం. ఇంతేనా చేసేది? తల్లిదండ్రులు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఏడవలసిన అవసరం ఏంటి? 50,000 లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకొని తల్లిదండ్రులు రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఏడవలసిన అవసరం ఏంటి అసలు? ఈ రోజు ఎప్పుడు ఇంత ఆక్రోశం రాలేదు. పాపం మంచిగా చదువుకున్న పిల్లలు భవిష్యత్తు. और वहीं इस मामले पर सियासत भी हो रही है। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सत्र रेवंत रेड्डी ने इंटरमीडिएट तलबा के मसाइल पर एहतजाज किया है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत पर तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम लगाया। साथ ही उन्होंने इंटरमीडिएट तलबा के पर्चों की दोबारा जांच कराने की भी मांग की है। तलबा की खुदकुशियों को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला कत्ल भी उन्होंने करार दे दिया। ఇన్ని వేల మంది తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఈరోజు గందరగోళంలో ఉంటే ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి గారు సంబంధిత అధికారులతో చర్చించలే? సంబంధిత విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో ఎందుకు చర్చిస్తలేడు? ఇవాళ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను పిలిచి తల్లిదండ్రుల కమిటీలతో మాట్లాడి వాళ్ళ సమస్యను తెలుసుకొని విద్యార్థులకు ఒక నమ్మకం కలిగించి ఈరోజు స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో పేపర్ల వాల్యుయేషన్ జరగాలి. ఇవాళ పేపర్ల వాల్యుయేషన్ లో జరిగిన అవకతవకల వల్ల, ప్రభుత్వ వైఫల్యం వల్ల ఈ రోజు ఇంత ఉపద్రవం వచ్చింది. 12 మంది విద్యార్థుల చావులకు కారణమైన మంత్రి తక్షణమే రాజీనామా చేయాలి. జగదీశ్వర్ రెడ్డి చావుల ఆత్మహత్యలు కాదు, ఈ ముఖ్యమంత్రి చేసిన హత్యలే. ఈ హత్యలకు కేసీఆర్ భారీ మూల్యం చెల్లించాలి, సమాధానం చెప్పాలి. ఇవాళ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన ప్రభుత్వం పారిపోయి పోలీసుల చేత అణచివేయాలని చూస్తుంది। और वहीं कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI के कारकुनों ने भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर के सामने धरना दिया है। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लिया। एहतजाजियों ने तेलंगाना हुकूमत पर तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम लगाया। साथ ही तलबा से इंसाफ करने की भी यहां मांग की गई है। और वहीं बीजेपी की तलबा तंजीम ABVP के कारकुनों ने भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर पर धरना दिया। ABVP लीडर्स और कारकुनों को सिटी पुलिस ने हिरासत में लेकर दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर तालीम जगदीश रेड्डी और बोर्ड के सेक्रेटरी अशोक को खिदमत से बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ का भी इल्जाम लगाया। साथ ही तलबा को इंसाफ मिलने तक अपना एहतजाज जारी रखने का इंतबाह भी दे डाला। एक्सपीरियंस लेने अधिकारुలను కేటాయించడం వల్లే ఈరోజు అనేక మంది విద్యార్థులు సస్పెండ్ కాయి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం జరిగింది। ఇప్పటికైనా సీఎం కేసీఆర్ దీని మీద స్పందించాలి।
ఇలా సీఎం స్పందించాలి, లేదంటే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేస్తామని సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాం. और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के खिलाफ हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के दूसरे मुकामात पर भी एहतजाज जारी है। जगतियाल की अगर बात करें तो जगतियाल में तलबा तंजीम के कारकुनों ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का अलामती पुतला नजर आतिश किया। और वहीं इंटरमीडिएट नताइज पर तलबा, औलिया तलबा और तलबा यूनियन की जानिब से जारी एहतजाज के दौरान तेलंगाना के वज़ीर तालीम ने एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में उन्होंने इस मामले की जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया और ये कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश भी कर देगी। वज़ीर तालीम ने एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि उन्हें रिजल्ट पर खदशात जाहिर करने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत हर तालिब इल्म के साथ इंसाफ करेगी। और तेलंगाना महकमा तालीम के सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज पर जारी एहतजाज के दरमियान वजाहत पेश की। जनार्दन रेड्डी ने कहा कि रिजल्ट में किसी भी किस्म की गड़बड़ी नहीं हुई है। एक लड़की जो कि कॉलेज की टॉपर थी, उसके मार्क्स इंसानी गलती की वजह से 0 दिखाए गए, यानी 0 दिखाए गए। इस मामले पर बोर्ड ने कार्रवाई भी कर डाली है। उन्होंने कहा कि तलबा अपने पर्चों की रिकाउंटिंग यानी दोबारा जांच करवा सकते हैं। 8 लाख से ज्यादा तलबा के मार्क्स की रिकाउंटिंग मुफ्त कराने के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं। इससे आगे तालीम हासिल करने वालों को मुश्किल होगी। और इस सब के बीच रियासत तेलंगाना में ZPTC और MPTC इम्तिहानात के शेड्यूल जारी कर दिया गया। पहले मरहले के लिए आज से पर्चा नामजदगियों का अदखाल शुरू हो गया है। 24 अप्रैल तक नामजदगियां दाखिल की जा सकती हैं। 25 अप्रैल को नामजदगियों की जांच होगी। 26 को एतराजात, 27 को एतराजात की जांच, 28 को 3 बजे के बाद पर नामजदगियां वापस लेने का मौका है। 4 मई तक तशहीरी मुहिम चलेगी। 6 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। वाज़ेह रहे कि MPTC और ZPTC के लिए पोलिंग 3 मरहलों के तहत होनी है। 6 मई को पहले मरहले, 10 मई को दूसरे और 14 मई को तीसरे मरहले के लिए पोलिंग होना है। रियासत में 538 ZPTC और 5817 MPTC नशिस्तों के लिए ये एलामिया जारी किया गया। कांग्रेस लीडर जीवंत रेड्डी ने आज रुकन कानून साज काउंसिल की हैसियत से हलफ लिया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के नायब सदर नशीन ने जीवन रेड्डी को ये हलफ दिलाया। इस मौके पर कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी, मोहम्मद अली शबीर, रेवंत रेड्डी, जाना रेड्डी और दीगर लीडर भी मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि जीवन रेड्डी ग्रेजुएट जुमरे से मुंतखब हो चुके हैं। कांग्रेस लीडर ने जीवन रेड्डी को मुबारकबाद भी पेश की। तेलंगाना में इस बार लॉसेट अंग्रेजी तेलुगु के अलावा अब उर्दू में भी होगा। लॉ कॉमन इंट्रेंस टेस्ट उर्दू में लिखने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए पर्चा सवालात उर्दू में फराहम करवाया जाएगा। 3 साला और 5 साला लॉ कोर्स के लिए 20 मई को सुबह 11 बजे से 12:30 बजे के दरमियान ये टेस्ट होना है। लॉसेट के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल है। इससे पहले लॉसेट का एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ अंग्रेजी और तेलुगु जबानों में हुआ करता था। TRS हुकूमत की दिलचस्पी के बाद अब इसको उर्दू जबान में भी मुनक्किद किया जा रहा है। और नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने इस पूरे मामले पर माहिर कानून और सहाफ़ी साजिद मेराज से खास बातचीत की है। हर साल हर रियासत में तालीमी साल के शुरुआत में लॉ के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स मुनाकिद होते हैं। तेलंगाना में इस साल एक ख़ास बात होने जा रही है। क्या है वो ख़ास बात? इस सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सहाफ़ी और माहिर क़ानून जनाब साजिद मेराज साहब। साजिद साहब, नई रियासत तेलंगाना बनने के बाद यहाँ पर जो है उर्दू के हवाले से कुछ ना कुछ हो रहा है। इस बार लासेट भी हो रहा है। सुना है उर्दू के हवाले से कोई लासेट के इम्तिहान में कोई तब्दीली होने वाली है। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का पूरी रियासत में दर्जा दिया गया
और इसी मौके पर वज़ीर आला KCR ने असम्बली के दरो दीवार गवाह है कि वज़ीर आला KCR ने ये ऐलान किया था कि तमाम आला तालीमी जो भी कोर्सेस रहेंगे उसमें दाखिले के लिए जो इम्तिहान मुनक़िद किए जाते हैं वो तेलुगु इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी मुनक़िद करने का ऐलान किया था। और इस बार वज़ीर आला KCR की जानिब से जो फ़ैसला लिया गया था उसके ऊपर अमलावरी करते हुए तेलंगाना आला तालीमी काउंसिल ने लासेट पहली मरतबा हिंदुस्तान में उर्दू में मुनक़िद करने का फ़ैसला किया गया। ये जो लासेट होगा वो इंटरमीडिएट के बाद 5 साल कोर्स रहेगा LLB, वो लोग भी लासेट में शिरकत कर सकते हैं। और डिग्री के बाद जो होने वाला लासेट रहता वो 3 साल का है LLB, उसमें भी लासेट होता है, उसमें उर्दू मीडियम के तलबा भी शिरकत कर सकते हैं। बिलखुसूस ये एक उर्दू तबके के लिए, उर्दू मीडियम के तलबा के लिए खुशखबरी है और इस बार लासेट भी MSET के साथ साथ लासेट भी उर्दू में मुनक़िद करने का फ़ैसला किया। जब हम पानी का तहफ़्फ़ुज़ वक्त की बेहद अहम ज़रूरत है। आज दुनिया साफ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से पाक हवा के मसाइल से जूझ रही है। वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर हैदराबाद के इलाके निकलिस रोड पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। GHMC और वाटर बोर्ड की जानिब से मुनक़्क़दा प्रोग्राम में तलबा की बड़ी तादाद मौजूद रही। तमाम तलबा को पानी के तहफ़्फ़ुज़ का मशवरा दिया गया, साथ ही अपनी आने वाली नस्लों के लिए पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। इस मौके पर दाना किशोर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि एक ज़माने में हुसैन सागर का पानी इस्तेमाल के काबिल रहा करता था, लेकिन हम सब की लापरवाही की वजह से अब हुसैन सागर का पानी इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। हुसैन सागर की सफाई करते हुए इस्तेमाल में लाने पर इसके पानी को गौर भी किया जा रहा है। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस हैदराबाद ने खतरनाक डकैती की गिरोह को बेनकाब किया और डकैती के इल्जाम में 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान में कम उम्र लड़का भी शामिल है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस मौके पर बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 11 किलो चांदी और 3 बाइक जब्त की गई। फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस डकैती गैंग के सभी मेंबर को अरेस्ट किया गया। ये टोटल 9 मेंबर गैंग है और इनके अरेस्ट होने के बाद टोटल 11 kg सिल्वर ज्वेलरी और 3 2 व्हीलर्स का रिकवरी हुआ। इसमें एक जुवेनाइल भी इस गैंग का मेंबर है। जिला कामारेड्डी के बीकानेर मंडल में कौमी शाहराह पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। तेज रफ्तार मुखालिफ सिम से आने वाली बाइक को टक्कर दी गई। बाइक पर 3 लोग सवार थे। तीनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। कार सड़क से नीचे जा गिरी। कार में सवार लोग मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और वहीं हैदराबाद के इलाके गोलीगुड़ा में खेलने के दौरान एक 4 साला बच्ची मेन होल में गिर गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने कामयाब जद्दोजहद के बाद इस बच्ची को बचाया। फायर ब्रिगेड अमले के अहदेदारों ने बताया कि 4 साला बच्ची खेल के दौरान पैर फिसलकर करीब में वाक़ मेन होल में जा गिरी थी। इसे बाहिफाजत निकाला गया। बादअज़ां इस लड़की को उसके वालिदैन के हवाले किया गया। आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के खुले मेन होल राहगीरों और खासतौर से छोटे बच्चों के लिए काफी जानलेवा साबित हो रहे हैं। जिला महबूब नगर के वन्नपुर्ती कत्ताकोटा में 2 सरकारी बसें एक दूसरे से टकरा गईं। आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल अदूनी डिपो से ताल्लुक रखने वाली 2 बसें हादसे का शिकार हुई। इसके सबब बस में सफर कर रहे 18 मुसाफिर जख्मी हो गए। ये बसें हैदराबाद से कर्नूल जा रही थीं। यू टर्न लेने के दौरान ये बसें आपस में टकराईं। जख्मियों को 108 के जरिए करीबी अस्पताल दाखिल करवाया गया। जिला संगारेड्डी के गुरुकुल स्कूल में 15 रोजा समर कैंप की शुरुआत की गई है। इस समर कैंप में तेलंगाना के 10 अजला के 80 से ज्यादा तलबा हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ इन तलबा को एथलेटिक के अलावा जूडो, रेसलिंग, हैंडबॉल की तरबियत दी जा रही है। रियासत भर के जुमला 8 ट्रेनर तलबा को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। 80 तलबा को 4 मुख्तलिफ ग्रुप में बांटा गया है। इंतजामिया का कहना है कि तलबा को तालीम के साथ साथ खेलों की ट्रेनिंग देना वक्त की अहम जरूरत है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में टीचर्स की भर्ती के तरीक़ेकार को लेकर अदालत उज़्मा ने
सख्त बरहमी का इजहार किया। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 1 फरवरी 2019 से कबल टीचर्स की खाली पड़ी आसामियों पर भर्ती की यकीन दहानी करवाई थी। वक्त गुजरने के बाद भी भर्ती न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में बरहमी का इजहार करते हुए जल्द से जल्द खाली पड़ी आसामियों पर भर्ती का हुक्म दिया है। इस केस की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि हुकूमत खाली पड़ी आसामियों पर भर्ती करने के लिए ताखीर कर रही है। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन के पेश नज़र जुलाई तक भर्तियां मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई है। सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर यह दावा किया कि 23 मई को आने वाले नताइज में एक बार फिर तेलुगु देशम पार्टी को ही कामयाबी हासिल होगी। नायडू ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी की जीत 1000% यकीनी है। अमरावती में तेलुगु देशम पार्टी के वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस वर्कशॉप में तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवारों और दीगर लीडरों ने शिरकत की। वर्कशॉप में इलेक्शन रायदही और ईवीएम का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में जमहूरियत खतरे में है। सीपीआई रियासती सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने यह बात कही। विजयवाड़ा में कॉमरेड लीडर लेनिन की 149वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर सीपीएम के दूसरे लीडर भी मौजूद रहे। लेनिन के मुजस्मे पर फूलमाला पेश की गई। इस मौके पर रामाकृष्णा ने कहा कि लेनिन ने मजदूरों के हकूक के लिए काम किया, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सीपीएम सेक्रेटरी मधु ने दहशतगर्दी के इल्जामात का सामना कर रही प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से बीजेपी की जानिब से मैदान में उतारने पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि मोदी हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह दे रही है। और अब जरा बात कर ले मौसम की। करनूल में मौसम गर्मा उरूज पर है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये 42 डिग्री को पार कर रहा है और मौसम की वजह से आम लोगों को अपने दिन भर के कामकाज में सख्त दिक्कतें पेश आ रही हैं। गर्मी की लहर के सबब गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में मरीजों का अज़दहाम देखा जा रहा है। करनूल गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट ने आवाम को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के दरमियान बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। मजबूरी की हालत में अगर बाहर निकलना पड़े तब छतरी, रुमाल और पानी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। गर्मी के वजह से पूरा हमारा जिस्म पे ये असर पड़ता, मतलब इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट कैसा होता है, ये एक बार ये उल्टी हो सकता, वो दिमाग काम बराबर नहीं कर सकते, ये दौड़े भी हो सकता, एक बार ये जिस्म के अंदर से पतली पायखाना या ऐसा डायरिया भी हो सकता। ऐसा गर्म में आपको ऊपर छतरी नहीं तो चादर, थोड़ा कपड़ा। करनूल की समाजी तंजीम सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म की जानिब से करनूल के उस्मानिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन में वर्ल्ड अर्थ डे तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तलबा को प्लास्टिक के नुकसानात से वाकिफ करवाया गया, साथ ही शजरकारी की अहमियत बताई गई। प्रिंसिपल उस्मानिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन करीमुल्लाह खान ने बताया कि माहौलियात की खराबी से मौसम में तब्दीली हो रही है और आवाम को मसाइल का सामना है। झाड़ और जो पानी की कमी पेशी आ गई है, उन चीजों से क्या चीजों से बचना है, इसके लिए एक प्रोग्राम रखा गया है। अपनी जमीन की हिफाजत करना है, जो झाड़ परिंदे वगैरह जो कम हो जा रहे हैं उसे कैसा इजाफा करना है, यानी पानी की कमी पेशी आ गई है। सबसे बड़ी चीज जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है और उसके बाद में हो सके तो हर घर में एक झाड़ लगा ले, तो इन चीजों से हम लोगों को फायदा पहुंचता है। अब तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस ने तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विजयवाड़ा में जुमला 13 अहम शाहराहों पर स्पीड गन कैमरे लगाए गए हैं। इनके जरिए तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों की तस्वीर ली जाएगी। विजयवाड़ा ट्रैफिक डीसीपी रविशंकर ने जानकारी दी कि ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शहर में जुमला 1250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। खबर अनंतपुर से है, जहां सब रजिस्ट्रार लक्ष्मी नारायण के मकान पर एसीबी ने धावा डाला। रामनगर इलाके में सब रजिस्ट्रार के तौर पर खदमात अंजाम देने वाले लक्ष्मी नारायण पर बदउनवानी का इल्जाम है। एसीबी अहदेदारों ने
मंसूबाबंद तरीके से आज एक साथ लक्ष्मी नारायण के 6 मकानात पर धावा बोला और दफ्तर में छानबीन की। इस दौरान 12 लाख रुपए नकद रकम के अलावा 175 ग्राम सोने के जेवरात मिले। 9 मुकामात पर प्लॉट्स के दस्तावेजात मिले। 4 मकानात की निशानदही हुई। एसीपी डीएसपी ने बताया कि धर्मावरम में भी लक्ष्मी नारायण के नाम पर एक मकान है। जांच के बाद तमाम तर तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाई जाएंगी। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।